Assalamu alaikum. My name is Dr. Aksa, and today the topic of presentation is multiple sclerosis. At the end of this presentation, we'll be able to have a brief introduction of multiple sclerosis, its etiology, pathology, what are the presenting features, diagnosis, and eventually the management. Multiple sclerosis, as the name indicates, multiple means many and sclerosis means scarring. So there are multiple scarring sites in your body due to an autoimmune process of unknown etiology that leads to a sequelae of symptoms depending upon which area of the brain or spinal cord is involved. It's a progressive degenerative disease that affects the myelin sheath of neurons in CNS. It is characterized by small patches of demyelination in the brain and spinal cord, or it's a chronic demyelinating disease that affects the myelin sheath of neurons in central nervous system. तो ये एक न्यूरॉन है सेल, ये एक्सॉन है और इसको ये जो आपको बाहर नजर आ रही है ये माइलिन शीथ है जो आपको ये येलो में नजर आ रही है और ये श्वान सेल्स हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन में जो माइलिन शीथ बनती है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाते हैं और जो आपके स्पाइनल कॉर्ड में बनती है वो आपके श्वान सेल्स बनाएंगे। ड्यू टू ऑटोम्यून एनी प्रोसेस और एनी अननोन एटियोलॉजी आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो आपके टी सेल्स और एंटीबॉडीज हैं, दे स्टार्ट एक्टिंग अगेंस्ट ओन बॉडी ऑर्गन्स। तो क्या होता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो ब्रेक होता है और आपकी एंटीबॉडीज और टी सेल जो हैं वो अटैक करते हैं माइलिन शीथ को। यहाँ पर माइलिन शीथ जो है वो इंटैक्ट है और पैसेज ऑफ इम्पल्स हो रही है अलोंग द नर्व फाइबर्स और यहाँ पर माइलिन शीथ जो है वो डिस्टॉर्ट हो रही है। उस माइलिन शीथ करती क्या है, वो इट हेल्प्स इन फास्ट एंड स्मूथ कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस। जब माइलिन शीथ डैमेज होगी तो आपके जो इम्पल्सेस जिन्होंने ट्रैवल करना है, जो एक्शन पोटेंशियल आपका ट्रैवल करेगा वो या तो ऑल्टर्ड होगा या फिर उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। इंसिडेंस onset it occurs between 12 to 40 years of age. Women are more affected than men. Whites are more affected than blacks or Asians, and it's most prevalent in colder climates of North America and Europe. Exact cause is yet unknown. Risk factors are age 20 to 40 years में आएगी. Women to men ratio is 3:1. Women are prone to have 3 times more as compared to men. Family history genetic susceptibility है, though it's not a hereditary disease, but if you have a person who is closely related to you and having MS, तो आप later on develop कर सकते हैं MS in your life, तो उसके chances ज़्यादा हो जाते हैं। और certain infections, if there is exposure to certain infections like Epstein-Barr virus, तो भी डेवलपमेंट ऑफ एमएस के चांसेस लेटर ऑन लाइफ में ज़्यादा हो जाएंगे। क्लाइमेट, मोर इन कोल्ड क्लाइमेट एरियाज में भी जो कोल्ड क्लाइमेट है वहाँ पर चूँकि सन का एक्सपोजर बहुत अच्छा नहीं होगा तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, वो भी एक कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर हो सकता है। सर्टन ऑटोइम्यून डिजीजेज, हाई रिस्क विथ थायराइड डिजीज, स्मोकिंग, स्ट्रेस, फटीग, फिजिकल इंजरी और प्रेगनेंसी। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? Due to etiological factors or risk factors, there is production of inflammatory cytokines. Inflammatory cytokines lead to inflammation, activate T cells and B cells of the body, causing demyelination, destruction of oligodendrocytes. Plaques banenge, there will be formation of plaques, which causes scarring and destruction of sheath. Compensatory system starts causing subsidation of edema and inflammation. After that, some remyelination process occurs, which is often incomplete and multiple sclerosis. Remyelination होगी लेकिन वो उस स्पीड पे नहीं होगी कि जिस पे होनी चाहिए, उसकी वजह से जो है वो सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे इसमें, डिपेंडिंग अपॉन के ब्रेन का कौन सा एरिया इन्वॉल्व है। क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होंगे इसके? फटीग जो है मोस्ट प्रेजेंटिंग सिम्टम है। उसके बाद विजुअल डिस्टर्बेंसेस आएंगी, ब्लड विजन, डिप्लोपिया, निस्टैग्मस, रेड ग्रीन कलर सैचुरेशन, डिसैचुरेशन। मोटर सिम्टम्स में स्पैस्टिसिटी, परेसिस, डिसआर्थरिया, स्पैज्म, एटेक्सिया, मसल वीकनेस। सेंसरी चेंजेस आएंगी, पैरास्थीजिया, न्यूरल्जिया,
कॉग्निटिव डेफिसिट्स आएंगे, मेमोरी लॉस होगा, ब्लैडर और बॉल अर्जेंसी और इनकॉन्टिनेंस होगी. What are the clinical conditions that are associated with MS? Most important और जो मोस्ट प्रेजेंटिंग फीचर जो कि MS का होगा वो ऑप्टिक न्यूराइटिस होगा. ऑलमोस्ट 20 to 30% ऑफ पेशेंट जो है दे विल प्रेजेंट विद ऑप्टिक न्यूराइटिस. और इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया, दैट इज ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ ऑकुलर मसल्स. और देयर इज ट्रांसवर्स माइलाइटिस, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. इन्वेस्टिगेशंस हम क्या करेंगे? MRI ऑफ द ब्रेन एंड ऑर्बिट्स विद गैडोलिनियम कंट्रास्ट. MRI एक तो डायग्नोसिस में हेल्प करेगा आपको, प्लाक जो कि टिपिकल इसमें आपको MS में मिलेंगे, और दूसरे इस डिजीज की मैनेज किस तरह करना है आपको, उसको आपने प्रोग्रेशन जो है उसका आपको पता चलेगा. सो कंफर्मेशन ऑफ द डायग्नोसिस और इम्पोर्टेंट प्रोग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिस्क ऑफ डेवलपिंग MS. ये हेल्दी ब्रेन है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको ये जो वाइट से जो प्लाक्स नजर आ रहे हैं, दे आर सजेस्टिव ऑफ MS. इसी तरह यहाँ पर भी ये टेम्पोरल लोब जो है, जो रेड एरो में है, ये इन्वॉल्व है. ग्रीन एरो में आपके जेक्स्ट्रा कॉर्टिकल लीजन्स हैं. ब्लू एरो में ये कॉर्पस कैलोजम का एरिया इन्वॉल्व है, और जो येलो है ये पेरीवेंट्रिकुलर लीजन्स हैं. सो सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि कौन सा एरिया ऑफ ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व है, उसके अकॉर्डिंग जो है फिर सिम्टम्स आएंगे. लंबर पंक्चर शोज ओलिगोक्लोनल बैंड्स ऑन प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ CSF in 90 to 95%, or visually evoked potential. They are abnormal in up to 100% of patients with clinically definite MS. There is conduction delay and reduced amplitude. ये ओलिगोक्लोनल बैंड्स हैं जो कि CSF जो है उसमें प्रेजेंट कर रहे हैं. What is the association between optic neuritis and multiple sclerosis? Optic neuritis is presenting feature of MS in up to 30% of patients. If there is acute attack of optic neuritis, then there are 50% chances that patient can have MS later on in his life. If there are no lesions on MRI, but optic neuritis attack is there, then the risk is 25%. And if there is one or more lesions, then the risk is 70%. Optic neuritis is inflammation of the optic nerve, impairing nerve conduction secondary to demyelination, infection और autoimmune pathology. ये नॉर्मल ऑप्टिक नर्व है, और यहाँ पर माइलिन शीट डैमेज हो गई है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो डैमेज ऑप्टिक नर्व है, डैमेज माइलिन शीट है. Optic neuritis can be classified both ophthalmoscopically and etologically. Ophthalmoscopically, it can be retrobulbar neuritis or papillitis or neuroretinitis. Retrobulbar neuritis जो है that is most common presenting optic neuritis in multiple sclerosis. Etologically, it can be demyelinating, parainfective, infective or autoimmune. Retrobulbar neuritis, optic nerve affected behind the eyeball, and the optic disc appears normal. The condition may be truly described as the patient sees nothing and the doctor sees nothing. This is the most frequent type in adults and frequently associated with multiple sclerosis. Papillitis में optic nerve head is affected. Hyperemia and edema of the optic disc may be associated with peripapillary flame-shaped hemorrhages. Or neuroretinitis, there is concomitant swelling of the optic nerve head or macula. There is macular scar. These are the exudates that form around the macula that give the appearance of star. ये retrobulbar neuritis है, इसमें optic disc जो है बिल्कुल नॉर्मल लग रही है, और सराउंडिंग बाकी फंडस भी नॉर्मल है. What are the other demyelinating diseases that can cause ocular problems? It can be isolated optic neuritis, it can be multiple sclerosis, it can be Devic disease. Devic disease में bilateral optic neuritis होगा. It can be Schilder disease. Schilder disease में bilateral neuritis होगा, but it is progressive generalized disease and onset is prior to 10 years old, and death can occur within 1 to 2 years. Clinical features of optic neuritis, typically acute monocular vision loss होगा, ocular pain that can worsen on eye movement several hours to days. There can be positive visual phenomena, phosphenes, जिसमें patient कहेगा कि उसको black or white or colored flashes of light आएंगे. Pulfric phenomena, that is altered perception of moving object,
एंड उथॉफ फिनोमेना, उसमें क्या होगा, जब भी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपकी जो कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस है वो फर्दर डेटेरियोरेट होगी, लेकिन जब वो फैक्टर जो कि बॉडी टेम्परेचर रेस कर रहा है, जब उसको आप रिमूव कर देंगे तो इट विल बैक टू द प्लेस जहाँ पे कि वो ऑलरेडी था. मे हैव हिस्ट्री ऑफ डीमाइलिनेटिंग सिम्टम्स. Signs: visual acuity 618 with mild visual defects 2 NPL. Relative afferent pupillary defect can be positive. Subnormal color vision, reduced color saturation and contrast sensitivity. Visual field defects can be there. Papillitis, disc edema without hemorrhages or exudates. 1/3 में swollen disc होगी, लेकिन 2/3 जो पेशेंट है उनमें नॉर्मल डिस्क होगी, जैसे कि रेट्रोबल्बर जो है उस पर नॉर्मल डिस्क होगी. सेंट्रल स्कोटोमा जो है दे आर मोर कॉमन इन ऑप्टिक न्यूराइटिस. What are the conditions that need to differentiate from when there is involvement of the optic nerve? टॉप प्रायोरिटी पे तो आप ऑप्टिक न्यूराइटिस को रखेंगे. व्हेन देयर इज पेन स्पेशली विद आई मूवमेंट्स एंड आरएपीडी इज पॉजिटिव एंड इन्वॉल्वमेंट इज यूनिलैटरल एंड देयर इज सडन लॉस ऑफ विजन. पेपिलिडीमा में एसोसिएटेड सिम्टम्स होंगे हेडेक, नोजिया, लेकिन वो बायलैटरल होगा. इट कैन बी एसिमेट्रिक. सूडोपेपिलिडीमा इज यूजुअली एसिम्टोमेटिक. आर्थ्रिटिक एंटीरियर इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी में भी हेडेक और पेन की कंप्लेन होगी वाइल चूइंग एंड इट इज यूजुअली यूनिलैटरल. नॉन आर्थ्रिटिक एंटीरियर इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी में पेनलेस लॉस ऑफ विजन होगा. कंप्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी में प्रोप्टोसिस और लिमिटेड एक्स्ट्राओकुलर मूवमेंट्स होंगी. और इन्फिल्ट्रेटिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी में हिस्ट्री ऑफ ट्यूमर्स, कैंसर्स, ऑटोइम्यून इन्फेक्शंस होगी. कोर्स ऑफ ऑप्टिक न्यूराइटिस क्या है? द विजन वर्सन्स ओवर सेवरल डेज टू 3 वीक्स एंड देन बिगिंस टू इम्प्रूव. पहले वो वर्स होगी, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव करना शुरू कर देगी, इरिस्पेक्टिव कि आप उसको कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे. इनिशियल रिकवरी इज फेयरली रैपिड एंड देन स्लोअर ओवर 6 to 12 months. प्रोग्नोसिस क्या है कि मोर देन 90% ऑफ पेशेंट्स रिकवर विजुअल एक्टिविटी टू 6/9 और बेटर. लेकिन जो दूसरे ऑप्टिक नर्व के जो फंक्शन के जो दूसरे पैरामीटर्स हैं, जैसे कलर विजन और कंट्रास्ट सेंसिटिविटी जो है, वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं होंगे. Subtle parameters of visual function such as color vision may remain abnormal or mild RAPD may persist. Temporal optic disc pallor or more marked optic atrophy may ensue. About 10% develop chronic optic neuritis with slow progressive visual loss. मैनेजमेंट इज एक तो आपने जो एक्यूट अटैक आ रहा है उसको मैनेज करना है, दूसरा उसको लॉन्ग टर्म मैनेज करना है. एक्यूट अटैक के लिए इंडिकेशंस क्या हैं स्टेरॉइड ट्रीटमेंट के लिए? इफ विजन इज वर्स एंड 6-12, it may speed up recovery by 2 to 3 weeks and may delay the onset of clinical MS over the short term. या पेशेंट जो है उसकी पुअर विजन है फेलो आई में. Important to note that therapy doesn't influence eventual visual outcome and most of the patients do not require treatment. लेकिन जो उसके सिम्टम के जो वो उसकी जो रिलैप्स हैं उसको वो जो इंटरवल्स हैं रिलैप्स के उसको वो ज़्यादा कर सकता है जो स्टीरॉयड है. IV methylprednisolone sodium succinate 1 gram daily for 3 days followed by oral prednisolone for 11 days and tapered over 3 days. Oral prednisolone may increase the risk of recurrence of optic neuritis if it is used without prior IV steroid. और long term में disease modifying therapies हैं for MS. Interferon beta is used in early stages. It is given as IM injection weekly. Monoclonal antibody treatment is showing promise in treatment of MS, but they have systemic side effects like opportunistic infections and abnormal liver functions. Natalizumab is used for highly active, relapsing, remitting MS in patients who are not responding to interferon beta, and it reduces relapses by 2/3, slowing the disability by half. एक तो वो रिलैप्सेस जो हैं डिजीज के उसको इंटरवल को ज़्यादा कर रहा है और दूसरे ओवरऑल जो डिजीज की प्रोग्रेशन है उसको भी कम करेगा. उसकी वजह से आपकी जो डिसेबिलिटी जो है उसके चांसेस जो हैं वो कम होंगे. Ocrelizumab is helpful for highly active disease but may rarely cause progressive multifocal leukoencephalopathy. Alemtuzumab may be the most cost effective of these medications. Approach to treatment क्या है कि a multidisciplinary approach is required for patients of MS. एक तो आपने न्यूरो फिजिशियन को भी इसको रेफर करना है क्योंकि जो बाकी मोटर सिम्टम्स, सेंसरी सिम्टम्स आ रहे हैं, पेशेंट में गो इनटू डिप्रेशन, उसको भी डील करना है. साथ साथ जो उसके रिलैप्सेस आ रहे हैं, जो अटैक्स आ रहे हैं, उनके लिए स्टीरॉइड्स देने हैं जो कि इन्फ्लेमेशन और एडिमा को कम करेंगे, पेन को कम करेंगे.
और ओवरऑल जो है वो आपके मॉडिफाइड फैक्टर्स जो हैं उनको आप यूज़ करेंगे ताकि इन द लॉन्ग रन जो आपकी डिजीज प्रोग्रेशन है उसको आप स्लो डाउन कर सकें। इफ देयर इज फर्स्ट अटैक सजेस्टिव ऑफ एमएस तो इंटरफेरॉन बीटा देंगे। इफ देयर इज रिलैप्सिंग एमएस लेकिन इनएक्टिव डिजीज है, एमआरआई पे आपको नहीं लीजन्स आ रहे, तो रेगुलर क्लिनिकल मॉनिटरिंग करेंगे आप उसकी। इफ देयर इज एक्टिव हाईली एक्टिव डिजीज देन डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपी देंगे, और इफ देयर इज प्रोग्रेसिव एमएस तो ऑक्रीलिजुमैब दे सकते हैं। थैंक यू।